That's cool. Then someone said that it is the smallest unit in our body. Okay, some said that it is the functional unit of our body. That's correct. Okay, so how can we define cell? Cell is the structural and functional unit of life. Okay, if you have been asked that what is a cell, so you can define it as cell is the structural and functional unit of life. Okay, or the fundamental unit of all living beings. Fundamental means the main unit, okay, from where the life begins. Okay, you have studied earlier in 6th standard that a life begins from a single cell. Okay, an organism's life begins from a single cell, right? We human being start our life as a single cell. And what is that cell? That cell is known as zygote, right? So we are in the form of zygote in the initiative stages of development. Okay, then that zygote develops into embryo, and further a full, and later on a full human organism, a full human body is formed. Okay, so if you are asked what is a cell, you can write in points that it is the fundamental and structural unit of all living beings. Okay, then it has its own life. Okay, own life means it is self-sustained. Okay, it does not have to depend upon anyone. It has its own life. Okay, how? Because cell consists of what? Nucleus. Nucleus gives life, right? So it has its own life. Then the same thing we said, organisms start life as a single cell, right? Organism एक single cell से अपनी life start करता है. In human beings, the cell is known as zygote. Okay. Okay. So we will not waste time in reading the whole paragraph because it's too much. It's बहुत lengthy दे रखा है और बहुत बार repetition भी हुआ है बहुत चीजों का. तो I have prepared notes and I will make you understand things. Okay. और जो मैं notes बोल रही हूँ आपकी book में भी है. It's written here. The cell is fundamental and structural unit of all living beings. Okay. Smallest part of body of an organism. Okay. Then performs essential function. You can underline that. Please underline that so that you can refer it during exams and it will be easy for you. Okay. What is a cell? में second paragraph में under that underline that paragraph. Okay. The cell से लेकर functions of life तक. And you can write it in your own words also. Then every organ in our body, the skin, the brain, muscle, okay, is composed of hundreds and thousands of cells. So basically, a human body consists of many cells, many cells. Okay, we start life as a single cell. Okay, we start our life with a single cell, but these cells, what they do, they continuously divide. Okay, so by continuous division, by continuous division, they form masses of cells. Okay, so एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब ह्यूमन बॉडी में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. ओके, आवर ब्रेन हैज बिलियंस ऑफ सेल. ओके, सिर्फ इस ब्रेन में मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल है. ओके, व्हाट आर द सेल्स प्रेजेंट, व्हिच आर द सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ब्रेन? एनीवन नोस? Nerve cell. Neurons. Yes, yes, correct. Nerve cell. Okay, you can say nerve cell. Okay, that's easy. सो ब्रेन में, बोन में, स्किन में सब जगह सेल्स होते हैं. ओके, इवन सिमिलरली प्लांट में भी, प्लांट के पार्ट में भी सेल्स होते हैं. लीफ, फ्लावर, रूट, वुड, सब में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं. ओके, देन इट्स रिटन एवरी सेल हैज इट्स ओन लाइफ. आई टोल्ड यू. ओके, अपना खुद का लाइफ होता है, सेल्फ सफिशिएंट होता है, सेल्फ सस्टेन्ड होता है. ओके, एंड आर रिप्लेस. ओके, ओल्ड सेल्स जो होते हैं बॉडी में वो वो कंटिन्यूअली डाई होते हैं. अब ओल्ड होते जा रहे हैं तो ओल्ड हो जाते हैं, तो वो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है एंड दे डाई. ओके, देन दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स. ओके, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड. ओके, व्हाई? बिकॉज सेल्स आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग. ओके, एक सेल या दो सेल पैदा होके वहां रुक नहीं रहा है. दीज आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग. सो व्हेन द ओल्ड वंस डाई, न्यू वंस आर रिप्लेस, मतलब वो रिप्लेस होके न्यू वन से रिप्लेस हो जाते हैं. ओके, न्यू वंस आर ऑलवेज फॉर्मिंग. Okay, so there's an example of red blood cells. RBC for instance die after about 120 days. Okay, हमारे ब्लड में जो RBC सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, वो उनकी जो स्पैन बताइए, लाइफ स्पैन, वो 120 डेज के अंदर मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. तो उसके बाद खत्म होने के बाद रुक थोड़ी जाता है प्रोसेस, फिर नए सेल्स बन रहे. ओके, बिकॉज वी नीड RBC.
WBC, RBC, ये सब हमारी बॉडी की नेसेसिटी है। अगर सेल्स बनना बंद हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वी विल इवेंचुअली डाई, हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी। तो सेल्स कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं। ओके, सो cells are so small, microscopic. Okay, cells are small, you can underline that. Okay, cells are very small and cannot be seen with naked eyes. हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सेल्स को देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। ओके, आपने सिक्स में सेवंथ में किसी स्टैंडर्ड में पढ़ा है दैट माइक्रोस्कोप इज नीड। अच्छा, आगे आ रहा है, इसी में ही आ रहा है कि माइक्रोस्कोप किसने बनाया था, और माइक्रोस्कोप से ही फर्स्ट सेल देखा गया था। ओके, so cell, to see cell, to watch or to view cell, we need microscope. हम उसको naked आंखों से नहीं देख सकते। Okay, most organisms including ourselves start life as a single cell called zygote. I told you human life कहाँ से start हो रही है? In the form of a zygote, which is a single cell. Okay, फिर आता है the invention of microscope and the discovery of cell. Okay, so okay, मैं सेल के लिए आपको बहुत इजी तरीके का एक बता देती हूँ। आपने बिल्डिंग देखी है ना? एवरीवन नोस, एवरीवन हैव सीन अ बिल्डिंग। ओके, अब बिल्डिंग के अंदर क्या होता है? बिल्डिंग के अंदर फ्लोर्स होती है, राइट? फ्लोर होते हैं। हम होटल में जाते हैं या किसी अपार्टमेंट में जाते हैं तो उस बिल्डिंग में, बिल्डिंग के अंदर फ्लोर्स होते हैं। ओके, एक एक फ्लोर, फ्लोर नंबर 1 2 3, ग्राउंड फ्लोर। ओके, ऐसा फ्लोर होता है। फ्लोर्स में क्या होते हैं? रूम्स होते हैं, राइट? ओके, फ्लोर जैसे ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर में रूम नंबर 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन, अप टू 50 हो सकते हैं, अप टू 100 हो सकते हैं। ओके, रूम्स होते हैं। रूम्स में क्या होता है? रूम्स किससे बना होता है? रूम्स में एक्चुअली क्या होता है? वॉल होती है। ओके, ये रूम है, ये वॉल है। ओके, ये रूम के अंदर वॉल है, और वॉल जो होती है किससे बनती है? ब्रिक्स। ओके, ब्रिक्स, सीमेंट, इन सब से। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट वॉल का क्या है? ब्रिक्स। ब्रिक्स चाहिए उसके लिए। सो हम अगर देखा जाए तो हमने बात करी बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के अंदर फ्लोर होते हैं, फ्लोर के अंदर रूम्स, रूम्स के अंदर वॉल्स, और वॉल्स ब्रिक्स से बनती है। तो इवेंचुअली बिल्डिंग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ? एक बिल्डिंग का सेल क्या हुआ? जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या है? कैन एनीबॉडी टेल? ब्रिक्स। brick, वेरी गुड, इट्स ब्रिक्स। ब्रिक्स से एक बिल्डिंग बन रही है। हम देखा जाए तो ब्रिक्स से डायरेक्ट बिल्डिंग नहीं बन रही है, पहले वॉल्स बना, रूम्स बना, फ्लोर बना, फिर बिल्डिंग बन रही है। तो इवेंचुअली बिल्डिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, और द फंडामेंटल यूनिट, वी कैन से फंडामेंटल यूनिट, वो क्या हुआ? ब्रिक्स हुआ। ओके, brick, यस, वेरी गुड। सो दिस इज फॉर एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम में नहीं लिखना, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे एक बिल्डिंग का फंडामेंटल यूनिट ब्रिक होता है। ओके, वैसे ही ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो क्या क्या होता है? ये हमारी बॉडी है। ओके, इस बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। व्हाट आर ऑर्गन सिस्टम्स? डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। दीज आर नोन एज ऑर्गन सिस्टम। ओके, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप, मैं जो बोल रही हूँ, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो प्लीज राइट इट डाउन। ओके, आपकी नोटबुक में आप लिख सकते हो, आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। ह्यूमन बॉडी एरो लगा के, ऑर्गन सिस्टम एरो लगा के, ऑर्गन, ऐसा, तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। ओके, तो हाँ, तो ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। ऑर्गन सिस्टम के एग्जाम्पल आप उसके साइड में लिख लो, 2 एग्जाम्पल लिख लो, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। ओके, वैसे सभी उसके अंदर आते हैं, पर आप 2 लिख लो आपकी जानकारी के लिए। फिर आता है ऑर्गन। ओके, ऑर्गन सिस्टम किससे बने होते हैं? ऑर्गन से। ओके, ऑर्गन में क्या आ जाएगा? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन क्या हो गया? स्टमक। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन क्या हो गया? लंग्स। नर्वस सिस्टम का क्या हो गया? ब्रेन। ब्रेन एंड नर्व्स। ओके, तो ये सब ऑर्गन सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स आ जाते हैं। ओके, तो आप ऑर्गन्स के साइड में भी लिख सकते हो एग्जाम्पल, लंग्स, ब्रेन, एक्सेट्रा। ओके, देन ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है? टिश्यूज, राइट? टिश्यू से ही ऑर्गन फॉर्म हो रहा है। और टिश्यू क्या होता है? आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, आपके फर्स्ट चैप्टर में था। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, राइट? टिश्यू क्या होता है? सेल का एक ग्रुप होता है जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये टिश्यू से ही ऑर्गन बनता है। ओके, आगे जाके ये टिश्यू स्पेसिफिक फंक्शन करने लग जाते हैं, स्पेसिफाई हो जाते हैं जहां जहां भी उनकी नीड है उस हिसाब से। ओके, और टिश्यू कहाँ से फॉर्म हो रहा है? सेल से, जो कि एक सिंगल यूनिट है। ओके, शुरुआत कहाँ से हो रही है? सेल से।
तो इवेंचुअली ह्यूमन बॉडी की शुरुआत कहाँ से हुई? सेल से। ओके, सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, और फिर ह्यूमन बॉडी बन रही है पूरी। तो सेल से हमारी शुरुआत हो रही है। ओके, ये भी एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ओके, देन अब सेल के अगर कुछ फीचर्स की बात करें तो सेल जो है इट कैन रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन। ओके, you can write it down when I'm saying it can reproduce on its own. Otherwise, I'll be sharing this video on your Moodle dashboard also. You can refer from there also. But अगर आपको lecture notes लेने हैं अभी, you can write it down. I hope I'm not too fast. Am I going too fast? No, ma'am. Okay. So, cell का अगर हम मेन फीचर्स की बात करें तो व्हाट वी कैन से इज सेल कैन रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन। सेल जो होता है अपने आप में रिप्रोडक्शन कर सकता है। अब इसका भी आप एक एग्जांपल ले लो। अगर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, दो गैमेट्स को मीट करना होता है, उसके बाद उनके मीटिंग के बाद उनका उनका फॉर्मेशन होता है, वो मीट होके एक जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से फिर वो बड़ा होता है। ऐसे दो गैमेट्स चाहिए होते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। ओके, वो तो ह्यूमन बॉडी में। बट जो सेल है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट है, वो अपने आप में रिप्रोड्यूस कर सकता है। ओके, वो अपने आप को डिवाइड करता रहता है, रिप्रोड्यूस करता है। देन इट कैन एक्सक्रीट ऑन इट्स ओन, अपने आप में एक्सक्रीशन भी कर सकता है। एक्सक्रीशन मतलब किस चीज का एक्सक्रीशन? जैसे सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन से कुछ चीजें अंदर आ जाती है, बाहर वो सब वो बाहर भी छोड़ सकता है। ओके, परमिएबिलिटी आपने सुना है, तो वो परमिएबिलिटी के थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, उसके थ्रू बाहर भी जा सकता है। ओके, तो एक्सक्रीशन भी करता है। देन सेल कैन रेस्पायर ऑन इट्स ओन, रेस्पिरेशन भी वो खुद कर सकता है। ओके, फिर इट कैन रिपेयर। ओके, वो अपने आप को रिपेयर भी कर सकता है। कई बार हमने सुना है सेल डैमेज हो जाता है तो सेल का रिपेयर होता है। ओके, वो अपनी आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं। ओके, तो ऐसे वो अपने आप को रिपेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो सेल सिस्टम जो होता है उसमें ऑर्गेनल्स होता है। ओके, सेल की अगर हम बात करें, जैसे अपन ने सुना है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो दोनों के अंदर क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ओके, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये सब ऑर्गेनल्स है ना? सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स को होते हैं, तो सेल के सिस्टम में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब आता है डिस्कवरी ऑफ सेल। ओके, सो ये डिस्कवरी, ओके, द फर्स्ट माइक्रोस्कोप was constructed by Dutch scientist Antony van Leeuwenhoek. Okay, you can underline that. If you are asked who constructed the first microscope, you can write Antony van Leeuwenhoek from 1632 to 1723. Was born on 1632 and died on 1723. Okay, so you can write Antony van Leeuwenhoek. So he is said to have constructed 400 microscope. उसने कुछ करीब 400 microscope बनाया है. Basically all his microscopes were called simple ones. Okay, so Anthony van Leeuwenhoek ने क्या किया? इसने simple microscopes बनाए. Simple microscope क्या होते हैं? जिनका मैग्निफिकेशन मतलब जो जूमिंग कैपेसिटी होती है, जूम करके देखने की, वो कम होती है सिंपल माइक्रोस्कोप में। और कंपाउंड में अगर हम देखें तो वो ज्यादा होती है, 50x टाइम्स। x हम क्यों यूज करते हैं? मैग्निफिकेशन का सिंबल होता है x। ओके, तो अगर आप आगे पढ़ोगे कि रॉबर्ट हुक जो है उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया और 50x का बनाया। 50x मींस 50 मैग्निफिकेशन, उसका जूमिंग कैपेसिटी। ओके, सो एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने सिंपल माइक्रोस्कोप्स बनाया। ओके, उनके उसमें सिर्फ सिंगल बाय कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ओके, यू नो द डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉनकेव ऐसा बेंट सरफेस होता है और कॉन्वेक्स ऐसा उठा हुआ। ओके, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो थे सिंगल बाय कॉन्वेक्स लेंस थे। ओके, और उनका मैग्नीफाइंग पावर क्या था? 200 टाइम्स तक। ओके, 200 टाइम्स तक वो मैग्नीफाई हो सकते थे। ओके, आप डायग्राम देख सकते हो अपनी बुक में। there's a diagram given, Leeuwenhoek's simple microscope. Okay, the features are also mentioned. Okay, lens, screw, back, front. Okay, सब बता रखा है। Okay, so
Robert Hooke from 1635 to 1703. Okay, English scientist developed a microscope by using two lenses for achieving greater magnification. Okay, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, दो लेंस के साथ. ओके, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने एक सिंगल लेंस के साथ, बाय कॉन्वेक्स लेंस के साथ सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया. इधर रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इसने क्या यूज किया, दो लेंस यूज की और एक और माइक्रोस्कोप बनाया जिसको नाम दे दिया गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ओके, एंड उसका मैग्निफिकेशन फिक्स 50x टाइम्स था, 50 टाइम्स था. ओके ओके, तो यहाँ पे दो लेंस यूज किए गए हैं, बाय कॉन्वेक्स लेंस है और इसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सम सॉरी ओके, सॉ सेल्स एज लिटिल कंपार्टमेंट्स. अब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप बनाया 50x का. उसके बाद जब उसने ऑब्जर्व किया, सेल को देखा, व्यू किया, तो उसने सेल को कैसे डिफाइन किया कि सेल जो है बहुत स्मॉल है और लिटिल कंपार्टमेंट्स की तरह दिखे उसे. माइक्रोस्कोप के अंदर जब उसने सेल को देखा तो बिल्कुल छोटे छोटे कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट आपको समझ आ रहा है, ऐसा ब्लॉक्स अपन बनाते हैं ना साथ साथ में, ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स. ओके ओके, टुडेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई अप टू 2000 टाइम्स. अभी जमाना बदल गया है, रॉबर्ट हुक तो उस टाइम पे 16 सेंचुरी में ये सब बनाया था, बट आज के टाइम पे माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन 2000 टाइम्स हो गया है. ओके, उस टाइम पे 20 टाइम्स, 50 टाइम्स होता था, 200 टाइम्स, बट आज के टाइम पे 2000 टाइम्स हो गया है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अप टू 2 लाख टाइम्स. ओके, अब एक और टाइप का माइक्रोस्कोप आजकल के साइंटिस्ट ने निकाला है जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके, वो उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो है 2 लाख टाइम्स, 2 लाख टाइम्स की मैग्निफिकेशन है. अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे डिफरेंट है कंपाउंड से, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इट यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर बेंट बाय मैग्नेट्स. इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स आके गिरते हैं मैग्नेट पे और मैग्नेट उनको बेंट कर देता है अपनी मैग्नेटिक फील्ड से. ओके, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड और ये सब, तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स ये सब पढ़े हैं. तो इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है वो मैग्नेट पे आके टच होती है और मैग्नेट उसको बेंट कर देता है. ओके, मैग्नेट से, मैग्नेट में बहुत पावर होती है, उसकी फील्ड बहुत बड़ी होती है, मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मैग्नेट को, सॉरी, इसको इलेक्ट्रॉन को बेंट कर देता है. तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बहुत ही ज्यादा मैग्निफिकेशन में हम देख सकते हैं, 2 लाख टाइम्स. ओके, तो द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक, बाय कॉन्वेक्स लेंस सिंगल माइक्रोस्कोप, ये हमने पढ़ लिया. अब आता है सेल थियरी. ओके, अब आता है सेल थियरी. अब सेल थियरी में मैं आपको समझाती हूँ, मैं अभी आई विल नॉट रीड दिस, मैं आपको समझाती हूँ. सेल थियरी में 3 पॉइंट्स स्टेट किए थे. ओके, 3 पॉइंट्स आर स्टेटेड इन सेल थियरी. Okay, so first point I'll read it out. Smallest unit of structure of all living beings. Okay, अब एक पॉइंट ये स्टेट किया कि ये लिविंग बीइंग्स के स्ट्रक्चर में स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. ये आप में से किसी ने बोला भी था, है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट है. फिर सेकंड पॉइंट स्टेट किया, यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. ओके, पहले हमने बात कर ली स्ट्रक्चर की, कि सारी लिविंग बीइंग्स में स्ट्रक्चर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है. फिर हम बात करेंगे फंक्शन की, तो यूनिट है फंक्शन का. ओके, पूरा एक फंक्शन का एक यूनिट चलाता है, जैसे हमने बात करी ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम जो है स्पेसिफाइड फंक्शंस करते हैं, तो इट इज अ यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. ओके, सारी लिविंग बीइंग्स में एक यूनिट ऑफ फंक्शन है ये. थर्ड पॉइंट स्टेट किया, अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स. थर्ड पॉइंट क्या दिया कि ये अराइज कहाँ से होते हैं, प्री एक्सिस्टिंग सेल से. जैसा हमने बात किया, पुराने सेल्स मर जाते हैं और नए से रिप्लेस हो जाते हैं, तो ये प्री एक्सिस्टिंग सेल से ही फॉर्म हो रहे हैं. Thus, it's the structural and functional unit of life. अब ये 3 पॉइंट से हमें क्या पता पड़ रहा है, फर्स्ट पॉइंट में स्ट्रक्चर की बात हो गई, सेकंड में फंक्शनल हो गया, और थर्ड में कहाँ से अराइज हो रहा है हो गया. तो thus हम क्या कह सकते हैं कंक्लूजन में, कि it is the structural and functional unit of life, right? Just a minute. Okay. So, अब we need to know that ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट किसने दिया. इधर 3 साइंटिस्ट के नाम दिए हैं. So the first 2 points, that is smallest unit of structure of all living beings and unit of function of all living beings, ये 2 points किसने दिए, स्क्लेरन और श्वान ने. Okay, these are 2 scientists, Schleiden and Schwann. Okay,
तो इन्होंने ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स दिए, और थर्ड पॉइंट जो है अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स, ये किसने दिया? वर्चॉ ने। ओके, ये साइंटिस्ट के नाम है, यू हैव टू लर्न दिस, बाय हार्ट करना पड़ेगा। और अगर पूछा जाए कि ये किसने दिया, किसने स्टेट किया है सेल थियरी, तो आपको इन 3 साइंटिस्ट के नाम लिखने हैं। फर्स्ट 2 पॉइंट्स क्लीडन और श्वेन ने दिए हैं, और थर्ड पॉइंट वर्चॉ ने दिए हैं। ठीक है, फिर आता है डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ओके, हर एक सेल, सारा डिफरेंट डिफरेंट सेल डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। सेल हमको कहाँ देखने को मिलेगा? आई, हार्ट, स्किन। ओके, यहाँ सब हमें सेल्स देखने को मिलते हैं, तो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, है ना। अब आई में जो सेल प्रेजेंट है वो हार्ट का फंक्शन थोड़ी परफॉर्म कर सकता है। आई में जो फंक्शन होना चाहिए, दैट इज टू सी, टू व्यू, वो आई में जो सेल प्रेजेंट है वो ही करेगा। ओके, तो ईच एंड एवरी सेल इज गिवन अ स्पेसिफिक फंक्शन, परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, आई में जो सेल प्रेजेंट है वो देखने को हेल्प करेंगे, हार्ट में जो प्रेजेंट है वो पंपिंग और हार्ट की एक्टिविटीज में करेंगे। ओके, लाइक दैट। फिर आता है सेल, सिंगल सेल स्पेशलाइज इनटू डिफरेंट सेल अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस एंड ऑर्गन्स दे आर प्रेजेंट। ये सिंगल सेल जो हमने बोला, सिंगल सेल स्पेशलाइज हो जाते हैं और जिस ऑर्गन में वो प्रेजेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंगली फंक्शन करते हैं। एज आई टोल्ड यू, आई के अंदर अलग सेल्स होती हैं, तो वो आई का फंक्शन परफॉर्म करती है। आई का सेल हार्ट का फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। ओके, सो सिंगल सेल स्पेशलाइज होते हैं डिफरेंट सेल में और फंक्शंस करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन्स दे आर प्रेजेंट इन, जिन ऑर्गन में वो प्रेजेंट है। ओके, देन इसमें जो डेड सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होकर न्यू वंस बन जाते हैं। ओके, वी हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डेड सेल्स रिमूव होके वो रिप्लेस हो जाते हैं न्यू से। लिविंग सेल्स फॉर्म सेल्स, अब सेल लिविंग होता है, वही सेल और फॉर्म कर रहा है ना। सेल लिविंग सेल से ही सेल फॉर्म हो रहा है। ओके, सो इनका ओरिजिन एक एक छोटा सेल ही है, लिविंग सेल। ओके, सॉरी, यस। सो अब आता है वैरायटी ऑफ सेल। ओके, अभी हमने बात करी सेल थियरी की। ओके, अब आता है वैरायटी ऑफ सेल। यस, तो आपके यहाँ पे दिया है व्हाट डज द सेल थियरी मीन। ओके, तो वहां लिखा है स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, सेल्स डाई एंड आर रिप्लेस्ड, मोस्ट लाइफ स्टार्ट्स एज अ सिंगल सेल। ओके, आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, है ना। मैंने एक्सप्लेन किया है, और वो जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज में लिखा है। मेनी ऑफ दीज सेल्स कंटिन्यूअसली डाई एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस, राइट। तो आप ऐसे 3-4 पॉइंट लिख के उसको एक एक दो दो सेंटेंस में डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। ओके, so okay, we'll read the last one. Most life starts as a single cell. Okay, ये एक example मैं बता रही हूँ. The life of the frog and life of a mango tree started as a fertilized egg and as a seed respectively. Frog का life कहाँ से start हो रहा है? Egg से. Mango का कहाँ से हो रहा है? Seed से. Okay, the egg was a single cell produced by cells of the ovary of mother frog. अब ये egg जो है fertilized egg, ये कहाँ से form हुआ है? Single cell से, जो कि कहाँ से मिलता है? Mother frog जो है उसकी ovary से. Okay. Mango seed had embryo, okay, which also started as a single cell in the ovary of the flowers of the parent mango tree. Mango seed में जो है embryo होता है, embryo से formation होता है। वो embryo जो है वो भी एक single cell है। वो कहाँ से आ रहा है? Parent mango tree से। okay, उसके flowers से, उसकी ovary से, parent mango tree की ovary से embryo आ रहा है। तो उससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि मोस्ट लाइफ स्टार्ट्स एज अ सिंगल सेल। यहाँ पे मैंगो ट्री का एग्जांपल दे दिया और फ्रॉक का एग्जांपल भी दे दिया। ओके, फ्रॉक का हो गया फर्टिलाइज्ड एग से, मैंगो ट्री का किससे हो गया? सीड से। ओके, फिर आता है सेल्स, हाउ मेनी। ओके, हाउ मेनी। सो द बिगर एन ऑर्गेनिज्म ग्रेटर इज द नंबर ऑफ सेल्स इन इट्स बॉडी। क्लियर, जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतने ही ज्यादा नंबर के सेल होंगे। ह्यूमन बॉडी, अभी मेरी बॉडी इतनी बड़ी है, ओके, मेरी अगर हाइट इतनी लंबी है, इतनी बड़ी बॉडी है, तो जितना मेरा बॉडी का साइज है उतने ही ज्यादा मेरे सेल्स भी होंगे अंदर के। ओके, छोटा ऑर्गेनिज्म होगा तो कम सेल्स होंगे, बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा तो ज्यादा सेल्स होंगे। ओके, then comes single cell. Many small plants and animals are made up of just one single cell. अब कुछ स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं सिर्फ एक सिंगल सेल से बने होते हैं। हमने बात की कि सेल लाइफ स्टार्ट करते हैं सिंगल सेल से पर डिवाइड होते हैं, बट इधर
जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, अमीबा, ये सब जो होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स, इसमें सिंगल सेल ही होता है। ओके, क्योंकि ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है ना। बैक्टीरिया कितना बिल्कुल छोटा सा होता है, बैक्टीरिया को भी हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उसके लिए भी माइक्रोस्कोप चाहिए। तो बैक्टीरिया, यीस्ट, अमीबा, these are examples of single cell. Okay. Then comes few celled. Some very small plants and animals, okay, have relatively fewer number of cells. Okay, just few hundred or few thousand cells. That is Pyrogyra and Volvox. Pyrogyra, algae और Volvox जो है, इनको हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं फ्यू सेल्ड के, जिनके अंदर बहुत ही फ्यू अमाउंट ऑफ सेल होते हैं, मे बी इन द नंबर ऑफ 100 और 1000, बस उससे ज्यादा नहीं। क्यों? बिकॉज दे आर ऑल्सो स्मॉल, है ना। स्पायरोगायरा, वॉल्वॉक्स, ये सब स्मॉल होते हैं। ओके, फिर आता है मल्टी सेल्ड। Most plants and animals we see around us, including our cells, are made up of millions and billions of cells. अब मल्टी सेल में सबसे मेन एग्जांपल तो ह्यूमन बीइंग ही आ जाएगा। Why? Because ह्यूमन बीइंग्स हम हमारा बॉडी बड़ा है, ओके, तो हम हमारी बॉडी के हिसाब से हम में सेल भी ज्यादा है ना। मल्टी सेल्ड है हम लोग, मिलियंस एंड बिलियंस, बिलियंस मिलियंस में रहता है अमाउंट हमारे सेल का। ओके, तो हम लोग मल्टी सेल की कैटेगरी में आते हैं। Human beings, mango trees, okay, these are multi-celled. So if an exam, if it is asked that single cell का, few cell का और multi cell का examples दो, और वो क्या होते हैं, तो सिंगल सेल से आपको ही पता पड़ के ही पता पड़ रहा है कि वन सिंगल सेल प्रेजेंट है। फ्यू सेल्ड मतलब फ्यू सेल्स आर प्रेजेंट, मल्टी सेल मतलब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। ओके, बस उसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि सिंगल में बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, फ्यू सेल्ड में स्पायरोगायरा एंड वॉल्वॉक्स, मल्टी सेल्ड में खुद को ही सोच लेना, ह्यूमन बीइंग्स एंड मैंगो ट्रीज। ओके, अब इस ब्लू बॉक्स में दिया है एवरेज साइज अडल्ट ह्यूमन कंस्टिट्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 37.2 ट्रिलियन सेल्स इन होल बॉडी। पूरी बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ओके, एक एवरेज ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं हम। 100 बिलियन नर्व सेल्स इन ह्यूमन ब्रेन। सिर्फ ह्यूमन ब्रेन के अंदर 100 बिलियन नर्व सेल्स है। ओके, नॉट 100, नॉट 1000, नॉट लैक्स, बट बिलियन, 100 बिलियन। ओके, 4 to 6 million red blood cells and 7,000 white blood cells per cubic millimeter of blood. पर क्यूबिक मिलीमीटर, जो थोड़ा 1 मिलीमीटर जो है ब्लड का, उसी में ही 4 to 6 मिलियन आरबीसी और 7,000 डब्ल्यूबीसी। तो सोचो, पर क्यूबिक मिलीमीटर में इतना है, तो पूरी बॉडी में जब ब्लड दौड़ रहा है, पूरी पूरी बॉडी में जितना यूनिट ब्लड है हमारा, उसमें तो कितना ज्यादा होगा, कितना ट्रिलियन में पहुंच जाएगा, है ना। मिलियन से ट्रिलियन में पहुंच जाएगा। ओके, नाउ कम्स सेल्स, हाउ स्मॉल। सेल्स कितना स्मॉल होता है। ओके, सेल्स जैसे हमने पढ़ा बहुत स्मॉल होते हैं, दे कैन ओनली बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, राइट। ओके, smallest cells are the bacteria, red blood cells in the human body. Okay, smallest cells का अगर example पूछा जाए तो you can write bacteria. Okay, bacteria smallest है, as I told you, bacteria में single cell होता है, वो small भी होता है। Okay, क्योंकि उसकी body small होती है, तो smallest cell में bacteria आ गया और red blood cells आ गया। red blood cells जो हमारी blood में capillaries में दौड़ती है, वो छोटे होते हैं, small होते हैं human body के अंदर। फिर लॉन्गेस्ट सेल्स आ गए। लॉन्गेस्ट सेल्स कौन से होते हैं? नर्व सेल्स। अब नर्व सेल लॉन्ग क्यों होते हैं, ये एक अलग क्वेश्चन अराइज होता है, बिकॉज नर्व सेल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन में, राइट। ब्रेन का काम क्या है? इंफॉर्मेशन को पूरा स्टोर करके रखना और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना इंफॉर्मेशन को और स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई मतलब अपन जैसे चुमटी मारते हैं तो अपन रिएक्ट करते हैं ना, उसको बोलते हैं स्टिमुलस। ओके, सो सारी इंफॉर्मेशन जो ब्रेन में है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाना चाहिए। ओके, तो ब्रेन से लेकर हाथ, ओके, टो, टो कहाँ है? बिल्कुल एंड में। ओके, पाँव के सबसे नीचे है टो। तो टो तक इंफॉर्मेशन जाने के लिए ऑब्वियसली नर्व सेल को लंबा होना पड़ेगा, है ना। छोटा सेल होगा तो इंफॉर्मेशन छोटा डिस्टेंस ही कवर कर पाएगी, बट बड़ा सेल है तो ब्रेन से लेकर टो तक पूरी इंफॉर्मेशन चली जाती है। तो नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट होते हैं। ओके,
यहाँ पे लिखा है इमेजिन अ नर्व सेल एक्सटेंडिंग फ्रॉम योर फिंगर टिप अप टू द स्पाइनल कॉर्ड इनसाइड योर बैकबोन। ओके, फिंगर टिप से बैकबोन के स्पाइनल कॉर्ड तक, है ना, इतनी लंबी नर्व फाइबर होती है, नर्व सेल होते हैं। ओके, बिकॉज व्हाई, अगर पूछा जाए क्यों नर्व सेल लंबे होते हैं, बिकॉज उनको इंफॉर्मेशन पास करना होता है फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, फिर आता है लार्जेस्ट सेल्स। लार्जेस्ट होता है बर्ड्स एग में, दैट इज द ऑस्ट्रिच एग। ओके, वो लार्जेस्ट सिंगल सेल है लिविंग वर्ल्ड का। आज, अगर आज के जमाने में भी देखा जाए तो अभी तक का लार्जेस्ट सिंगल सेल कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रिच एग में। ठीक है, the white albumin of the egg and the eggshell are extra parts added on the actual egg as it passes down to the reproductive tract. ओके, तो मतलब वो लार्जेस्ट सेल बिना व्हाइट एल्बुमिन और एगशेल के है। ओके, वो तो एक्स्ट्रा पार्ट्स है। ठीक है, तो अगर हम सेल के फॉर्म में देखा जाए तो लार्जेस्ट जो है वो ऑस्ट्रिच एग है। अब आता है स्मॉलनेस ऑफ सेल्स। ओके, a greater efficiency. Cells generally remain small in size, and this is because of two main reasons. Different regions of a cell can communicate with each other rapidly for the cell to function effectively. Cells have a large surface area or volume ratio for greater diffusion of substances in and out of the cell. Okay. अब हम जो बात कर रहे हैं कि सेल जो होते हैं, स्मॉलनेस ऑफ सेल। ओके, सेल जनरली स्मॉल होते हैं। अब इनके दो मेन रीजन है क्यों। फर्स्ट रीजन ये है कि ये स्मॉल इसलिए होते हैं और पास पास होते हैं क्योंकि इनको कम्युनिकेट करना होता है। एक इंफॉर्मेशन, जैसे ब्रेन का एग्जांपल ही ले ले, तो नर्व सेल को कम्युनिकेशन करना होता है। ठीक है, बॉडी में भी हमारी जितनी भी सेल्स हैं उनको कम्युनिकेट करना होता है एक दूसरे से, ताकि वो इफेक्टिवली फंक्शन कर सके। ओके, ये सब ऐसे डिपेंड रहते हैं कि पास वाला सेल भी उनके साथ अटैच रहता है, तो वो उनकी कम्युनिकेशन की वजह से वो और फास्टर एफिशिएंट होते हैं। ओके, फिर आता है सेल्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया उनका बहुत बड़ा होता है फॉर ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो अभी हमने देखा कि सेल्स जो है, सेल के अंदर भी सब्सटेंसेस जाते हैं, है ना। सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होता है, उसमें से ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, तो उसमें से सब्सटेंसेस अंदर और बाहर जाती है ना। तो सेल्स जो है स्मॉल साइज इसलिए होती है क्योंकि उनको ये फंक्शन करना होता है, ये सारी बाहर की चीजें अंदर आना, अंदर की चीजें बाहर जाना, ये सब इफेक्टिवली करना होता है। ठीक है, इसलिए सेल का जो सरफेस एरिया होता है, जो कवरिंग एरिया होता है, जितना एरिया जो कवर करते हैं वो लार्ज होता है। ओके, ताकि ये सब्सटेंसेस को पास कर सके। ओके, तो ओके, नाउ विल टॉक अबाउट सेल शेप्स। ओके, अभी हमने बात करी कि नर्व सेल की बात करी, लॉन्ग नर्व सेल लॉन्ग होते हैं। क्यों लॉन्ग होते हैं मैंने बताया, बिकॉज दे हैव टू कंडक्ट इम्पल्सेस और इंफॉर्मेशन। ओके, इफ यू यूज द वर्ड इम्पल्सेस दैट विल बी बेटर। ठीक है, इंफॉर्मेशन तो सेकेंडरी थिंग हो गया, बट इम्पल्स, ओके, स्टिमुलस, इम्पल्स, जो इम्पल्स मतलब जो ब्रेन से जो दूसरे पार्ट्स तक जो इसको हम दूसरी वर्ड में इंफॉर्मेशन ही बोलेंगे। ओके, जो स्टिग्मा जा रहा है, जो टच, जो इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन से दूसरे पार्ट्स में, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। तो नर्व सेल्स इसलिए लॉन्ग होते हैं क्योंकि दे हैव टू कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू ब्रेन एंड वाइस वर्सा। ओके, ब्रेन से दूसरे पार्ट में भी और दूसरे पार्ट से ब्रेन में भी, वाइस वर्सा मीन्स दूसरे पार्ट से ब्रेन में भी, ब्रेन से दूसरे पार्ट्स में भी, है ना। ब्रेन से दूसरे पार्ट्स में भी कंडक्ट होता है इम्पल्सेस, और दूसरे पार्ट से ब्रेन में भी होता है। दूसरे पार्ट्स मतलब कौन से पार्ट्स, जो हैंड हो गया, लेग हो गया, है ना, जितने भी बॉडी में पार्ट्स प्रेजेंट है हमारे। ओके, तो इसलिए नर्व सेल्स लॉन्ग होते हैं। फिर हम एग्जांपल अगर ले सकते हैं, हम गार्ड सेल का अगर एग्जांपल ले, गार्ड सेल सुना है, स्टोमेटा में होता है प्लांट के। तो एपिडर्मिस, गार्ड सेल, ये सब आपने सुना होगा। तो गार्ड सेल जो है कैसा होता है, बीन शेप्ड। ओके, अपन ये खाते हैं ना, बीन्स किडनी शेप्ड होते हैं, तो गार्ड सेल भी बीन शेप्ड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि गार्ड सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा में। ओके, तो स्टोमेटा, आपने सुना है ट्रांसपिरेशन के बारे में, ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू होता है। ओके, तो ट्रांसपिरेशन के टाइम पे जो वाटर बाहर जाना होता है
वो उस टाइम पे स्टोमेटा ऐसा खुलता है फिर बंद होता है ना। तो आपने सुना होगा कि डे टाइम पे ट्रांसपीरेशन ज्यादा रहता है और नाइट टाइम पे लेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो अपने आप को ओपन और क्लोज करने के लिए ये गार्ड सेल ऐसा बीन शेप्ड होता है, ऐसा। ओके, थोड़ा सा ऐसा मुड़ा हुआ, एकदम बीन शेप्ड। ओके, फिर आता है मसल सेल। मसल सेल जो होते हैं लॉन्ग और कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं टू पुल और स्क्वीज द पार्ट्स। ओके, मसल सेल्स कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं और कॉन्ट्रैक्टिंग होते हैं, मतलब हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन सुना है ना? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, क्यों? ताकि वो बाकी पार्ट्स को पुल कर सके। ओके, बाकी पार्ट्स को स्क्वीज कर सके, पुल कर सके, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, इसलिए मसल सेल्स लॉन्ग और कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। ओके, फिर रेड ब्लड सेल्स कॉनकेव शेप्ड होते हैं। कॉनकेव शेप्ड, कॉनकेव मतलब ऐसा, ऐसा दबाव, बेंट। ओके, और कॉन्वेक्स मतलब ऐसा, पहाड़ जैसा। ठीक है, तो कॉनकेव ऐसे क्यों होते हैं रेड ब्लड सेल्स? डू एनीवन हैव एनी डाउट? No, ma'am. ओके, हाँ ओके, मैम। सो ओके, यस, सो कॉनकेव शेप्ड क्यों होते हैं रेड ब्लड सेल्स? कैन एनीवन से एनी आंसर? आई गेस यस। To transport oxygen. Yes, very good. They transport oxygen because where are they present? RBC ब्लड में प्रेजेंट होता है, तो इजी फ्लो के लिए। और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? आप सब लोग सोच रहे होंगे कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा इस शेप के थ्रू। क्यों? शेप छोटी होने की वजह से वो जो नैरो कैपिलरीज होती है नर्व्स के अंदर, सुना होगा ना आपने, कैपिलरीज होती है नर्व्स के अंदर, नैरो होती है, बहुत छोटी छोटी होती है, पतली होती है ना? तो उन कैपिलरीज के अंदर से पास होने के लिए, उनके अंदर से फ्लो होने के लिए इनका शेप स्मॉल होता है। और उनके अंदर से फ्लो क्यों होना है? ताकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इजीली हो सके। अंदर से जब कैपिलरीज से पास होएगी फिर ही तो आगे का प्रोसेस बढ़ेगा, है ना? तो उनके इस छोटे शेप की वजह से वो इजीली पास हो जाती है कैपिलरीज से, एंड देन thus they function effectively for oxygen transport. Okay, फिर आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और भी है। स्पर्म सेल, स्किन सेल, ये सब स्किन सेल, स्किन में प्रेजेंट होता है स्पर्म सेल। ह्यूमन मेल बॉडी में प्रेजेंट होता है। ओके, और मतलब मेल ऑर्गेनिजम्स में स्पर्म सेल प्रेजेंट होता है। वैसे ही कुछ कुछ आपकी बुक्स में दिए हैं, आपने ये देखा डायग्राम आपकी बुक्स में दे रखे हैं। बोन सेल का दिया है, प्लांट सेल दिया है, अमीबा दिया है। ओके, और सारे दे रखे हैं, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, ये सब एक एग्जाम्पल है। ओके, हाँ, और भी दिया है ह्यूमन। ओके, हाँ, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ये हो गया। व्हाइट ब्लड सेल अमीबॉइड शेप के होते हैं। क्यों? ताकि वो कैपिलरी वॉल से स्क्वीज आउट हो सके, बाहर निकल सके। ओके, मतलब उनका अमीबा लाइक मूवमेंट होता है। अमीबा कैसे चलता है आपने देखा होगा, ऐसा 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 ऐसे हिल हिल के चलता है ना? तो मतलब सूडोपोडिया मूवमेंट होता है उनका। तो वो स्क्वीज हो सके, कैपिलरी वॉल से बाहर निकल सके, इसलिए वो अमीबॉइड शेप के होते हैं। नर्व सेल की बात हमने कर ली। मसल सेल लॉन्ग और कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं ताकि वो पार्ट्स को पुल कर सके। गार्ड सेल की हमने बात कर दी ताकि वो पोर सोमेटा को ओपन और क्लोज कर सके। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड टिल सेल शेप्स। सेल शेप्स तक हमने कर लिया है। ओके, टुडेज क्लास इज ओवर। ओके, इट वाज ओनली 45 मिनट्स का क्लास था। So today's class is over. If you have any doubt, you can ask right now or you can leave. Thank you, everyone. If you have any doubt, you can ask right now. No doubt, ma'am. Okay, fine. Okay, then we'll do the Thank you, next ma'am. topic. Oh, yes, thank you so much. You're welcome. Okay, so we'll do the next topic in the coming class. Okay, your coming class is on Thursday or Friday. Friday, I guess. So we'll do the next part on Friday. I'll give you the notes. I'll post the notes on Moodle dashboard, not the notes or the video. The video I'll post it on Moodle dashboard. You can go and refer from there. And kindly ask your classmates also to go and refer. Thank you so much. Okay, Thank you, thank ma'am. you. Yes.